Good evening, everyone. Am I audible to all of you? Yes, thank you so much for the confirmation. What a pleasure it is to have Dr. Rajiv Ranjan Sinha himself joining us this evening. Yes, ma'am. Thank you. So nice of you. Thank you so much, sir. What a pleasure to have you on the session. Just Just a pleasure. All right, okay, shall we carry on, ma'am. start? Carry on. Yeah, thank you so much. Carry on. Thank you. Thank you so much. Okay, okay. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. Thank you, everyone, so much for joining me in the prayer. It was indeed my pleasure to have all of you join me in the prayer. And now, it was also my extreme pleasure to have Dr. Rajiv Ranjan Sinha joining us from the Patliputra Sahodaya School Complex. Thank you so much, sir, for coming and joining us this evening. It's also my extreme pleasure to be back here at Patliputra Sahodaya School Complex and be amongst all of you brilliant educators this evening. What a pleasure it is to see so many of you already gathered here and joining us. So our topic this evening is learning outcomes as per NCF SE or as per National Curriculum Framework for School Education. Right. So as per that, we shall now be moving ahead.
This is Miss Khyati Dwarkadas. My voice is 100% loud for someone who can't hear me. You can log out and log in again. Just in case I'm not audible, I'm sure somebody at PSSC will tell me that. But everyone agrees I'm loud enough. Thank you. Before I begin today's session, I'd love to thank Patliputra Savodai School Complex for inviting me here, particularly Dr. Rajiv Ranjan Sinha and Insha Rahman ma'am, who've been kind enough to invite me over to this platform and address all of you wonderful educators. It's indeed my honor and privilege to be here sharing the platform with all of you. It's also my duty to express and extend my gratitude to Sri Tarun Kumar sir, currently Joint Secretary Admin CBSE Headquarters, former COE Head COE Patna, who has really brought us together on this platform and has really shown us that miles are not something that can separate us. Thank you so much, all of you. And now we shall formally begin with today's session. So I have this wonderful comic strip for all of you. And in the chat box, आप मुझे ये बताइए कि this is a comic strip where the teacher has taught Stripe how to whistle. The teacher has taught Stripe how to whistle. But nobody has heard Stripe whistling. So the teacher says, I taught Stripe how to whistle. I did not say he learned. इस कॉमिक स्ट्रिप को पढ़ने के बाद आप मुझे ये बताइए चैट बॉक्स में कि ये ऑब्जेक्टिव है या आउटकम है. Okay, somebody just wrote outcome while somebody is writing objective. Oh, the chat is moving fast with objective and outcome. चलिए इसका उत्तर आप मुझे आज सेशन के बाद दोगे कि आप क्या समझे ये ऑब्जेक्टिव है या आउटकम. फाइनल उत्तर हम तभी बताएंगे जब आज सेशन खत्म होगा. ये ऑब्जेक्टिव है कि आउटकम. In the meantime, I'm going to leave you guessing if this is an objective or an outcome. And I want all of you to log into menti.com. आपको स्क्रीन पर ये कोड दिख रहा है menti.com. आप वहां जुड़िए, अपने मोबाइल फोन में एक नई खिड़की खोलिए, उसमें जुड़िए menti.com और कोड डालिए 32138114. 32138114. menti.com. कोड आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 32138114. Please log into menti.com. I'm going to stop sharing my screen because I want to see what answers are coming onto my Mentimeter. Though there are very few answers, but they have started coming in and I'm very happy.
I have shared the code with you. हम 3000 से ज्यादा लोग हैं, मेरे पास केवल 229 उत्तर आए हैं. All right, I will share the Menti screen. आपको Menti screen पर भी कोड दिखेगा 32138114. Mentimeter में ही लिखना है 32138114. Yes, I can now see only 270 responses. हम इतने लोग हैं, हमें अपने ही उत्तर नहीं दिख रहे हैं. अब तक 1000 उत्तर आ जाने चाहिए थे मेरे पास. 3000 के ऊपर लोग हैं. All right, let me go to the next question. इसमें तो तुरंत उत्तर आ रहे हैं. Move ahead to the next question. I have stopped my screen share क्योंकि मैंने आपको प्रश्न दिया है. और अभी मैं 2 मिनट के अंदर अंदर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर दिखाऊंगी जो आपने इस प्रश्न के लिए लिखे हैं. आप सबसे बात करने के हेतु ही तो हमने आज ये मेंटीमीटर लगाया है. आप सबकी बात हम एक साथ देख सके, सुन सके. मेरा मेंटी स्क्रीन बड़ा तेज दौड़ रहा है. पर अब लोग चुप हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं.
और पर मुझे खुशी बड़ी हो रही है कि कुछ लोग बिल्कुल बैंग ऑन सही रिस्पांस भी लिख रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ आपने कौन से रिस्पॉन्सेस दिखाए हैं, क्या लिखा है आपने। मेंटीमीटर इज अ प्रेजेंटेशन ऐप, किसी ने अभी पूछा मेंटीमीटर क्या है। आप लोग इतना इतना फास्ट लिख रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। पर अभी मैं 1 ही मिनट के अंदर इसको बंद करने वाली हूँ, तो यदि आप लिख रहे हैं तो अपना लिखना पूरा कर दीजिए, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ आपने क्या क्या लिखा है, और भी लोग लिख रहे हैं। We have close to 199 responses on the screen. तालियां आपके लिए। आपको पूरी चैट दिख रही है, 201 रिस्पॉन्स हो चुके हैं। You can see how beautifully you have written a lot of things. नवीन कुमार, आपको कुछ लिखना है तो चैट में लिखे, हैंड लोअर कर दीजिए। 206 रिस्पॉन्स हमें अब तक मिल चुके हैं, और सभी रिस्पॉन्सेस का हमने स्वीकार किया है। और ये कितने प्यार से आगे दौड़ रहा है। ऑल राइट, तो इसी के साथ मैं ये मेंटीमीटर का स्क्रीन बंद कर रही हूँ। मेंटीमीटर का कोड भी मैंने आपको जो दिया था अब बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसे बंद कर दिया है। So let us come to this very important question now. NCF स्कूल एजुकेशन या NCF ऐसी जिस पर हमने आज ये
वेबिनार रखा है, आज की ट्रेनिंग रखी है। NCF-SE में ऐसा क्या लिखा है जो कि हम करिकुलर गोल्स के बारे में जान सके। तो curricular goals are statements that give directions to curriculum development and implementation, and they are derived from aims and are specific to stages of education. Like foundational stage के लिए अलग goals दिए गए हैं, preparatory stage के लिए अलग दिए गए हैं, middle stage के लिए goals are given differently, and for the secondary stage they are given differently. The National Curriculum Framework is a framework which guides the development of all the curricula of the state and the curricular goals. Like for example, in this NCF, we have seen, ठीक है, हम हिंदी में बोलने का प्रयत्न भी करेंगे। तो NCF में हम देख रहे हैं कि children develop effective communication skills for day-to-day interaction in 2 languages. बच्चे 2 से ज्यादा भाषाओं में भी बातचीत करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। ये फाउंडेशनल स्टेज का एक करिकुलर गोल है। पर NCF ने कॉम्पिटेंसीज, योग्यताओं को भी ध्यान में रखा है और हमें समझाया है कि कॉम्पिटेंसीज आर लर्निंग अचीवमेंट्स, competencies are learning achievements that are observable, can be assessed systematically. These are derived from the curricular goals and are expected to be attained by the end of a stage. Competencies are articulated very well given in the National Curriculum Framework. However, curriculum developers can adapt and modify these competencies अपने अपने विद्यालय में अपनी अपनी कक्षाओं को ध्यान में रखकर. The following are examples of competencies taken from the NCF. The student converses fluently, can hold a meaningful conversation, understands oral instructions for a complex task, gives clear oral instructions for the same to others. यानी ये अलग अलग योग्यताओं को भी NCF ने ध्यान में रखा हुआ है लर्निंग आउटकम्स के लिए। फिर NCF ने हमें बताया है कि लर्निंग आउटकम्स क्या है। तो competencies are attained over a period of time, पर उनको competencies को या योग्यता को पाने के लिए जो कि एक लंबे समय के बाद मिलती है, उसे प्रमाणित करने के लिए बीच बीच में हमें कोई इंटरिम मार्कर्स चाहिए। तो ये इंटरिम मार्कर्स होते हैं हमारे लर्निंग आउटकम्स। Usually they are granular milestones of learning, usually in progression in a sequence leading to the attainment of a competency. Curriculum developers and teachers should have autonomy to define learning outcomes as appropriate to their classroom context while maintaining connections to the competencies. अब ये मुझे बड़ा अच्छा एक टेबल मिल गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में। ये हालांकि फाउंडेशनल स्टेज के लिए है जो कि NCF-SE में दिया गया है, पर आप इसके योग्यताओं को देखिए, कम योग्यता से लेके हम प्रोग्रेसिवली योग्यताओं को देख रहे हैं। Listens attentively and speaks in short conversation with familiar people. उसके आगे हम क्या देख रहे हैं? Initiates conversations in daily life. उसके आगे जब हम बढ़ते हैं, engages in conversations based on events, stories, or needs and asks questions. Waits for their turn to speak. Maintains the thread of the conversation. तो एक पूरी लाइन में हम एक आउटकम की अलग अलग योग्यताएं को देख रहे हैं। उसी तरह आगे आगे एक बार ओरल कॉन्वर्सेशन पे चल रहा है, एक बार नरेशन पे चल रहा है। अब हम देखते हैं
तो ये लर्निंग आउटकम्स का ये पूरा चक्कर क्या है? एक लर्निंग साइकिल है। हम देखते हैं डिफाइंड इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, वहां से ये शुरू होती है साइकिल। देन you move to instructional practices in the classroom. पहले हम लर्निंग आउटकम्स डिफाइन करते हैं, हम करना क्या चाहते हैं, इस लेसन के अंत में बच्चा सीखेगा क्या, वो हमारा लर्निंग आउटकम हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कैसे पढ़ाएंगे, पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस, इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस ऑफ द क्लासरूम, हम उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब जब हमने पढ़ा लिया है तो हम असेस करेंगे। हम असेस क्या करते हैं, लर्निंग आउटकम, क्योंकि हमने जो पढ़ाया है, जो हमने जो लर्निंग आउटकम में लिखा था वही पढ़ाया है, तो हम उसी को असेस करेंगे। सो वी मेजर द लर्निंग आउटकम एंड देन वी रिफ्लेक्ट, क्या अच्छा गया लेसन, हमने जो सोचा था वैसे गया, क्या हम कुछ बदल पा रहे थे उसमें, हम उसमें और क्या कर सकते थे कि इस चीज को हम बेहतरीन बनाएं। That was your reflection. Once you reflect, you modify your lesson based on the reflection, and when you go back to class, you are better enriched, better competent to take on the next defined learning outcome. इसी चीज को जब हम अपने दिमाग से देखते हैं तो लर्निंग साइकिल कैसे चलती है। पहले स्टेज में हम प्रीवियस नॉलेज, प्रायर नॉलेज को चेक करते हैं और देखते हैं कि हम जो नया सिखाते हैं वो कहाँ जाएगा। सो देयर इज न्यू लर्निंग एंड टीचिंग इन स्टेज 2। स्टेज 3 में हमारी कक्षा के अबव एवरेज बच्चों के लिए कोई चैलेंजिंग टास्क हम प्रदान करते हैं। स्टेज 4 में हम फीडबैक देते हैं बच्चों को और फीडबैक लेते भी हैं बच्चों से, जैसे एग्जिट कार्ड हो गए और बहुत सारी थम्स अप थम्स डाउन पद्धति है। हम बहुत सारी पद्धतियों से बच्चों से फीडबैक लेते हैं और बच्चों को हम फीडबैक में क्या देते हैं, हम बच्चे को ये नहीं बोल सकते कि आपका गुड हो गया, ये गुड वर्क था, ये वेरी गुड था। इनका अंतर होता है, बच्चे को पता कैसे चलेगा कि अपनी क्षमता से बच्चे ने कैसा किया है। इसके लिए हमें बच्चे को बोलना पड़ेगा कि बच्चा कहाँ इम्प्रूव करेगा, किस चीज पर इम्प्रूव करेगा, कौन सी योग्यताओं को इम्प्रूव करेगा, तब वो अपने पैर पर पूरी तरह सक्षम हो जाएगा। तो हमें उन चीजों पर ध्यान फोकस रखना पड़ेगा और यही 4 चीजों को हम रिपीट करेंगे, हम रिफ्लेक्ट करेंगे, उनको हम मॉडिफाई करेंगे और दोबारा पहुंच जाएंगे स्टेज 1 पर, जो कि एग्जिस्टिंग प्रायर नॉलेज का चेक है। तो ये जो दिमाग वाली बात हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो और कुछ नहीं, इसी साइकिल का एक हिस्सा है। इसी साइकिल को हमने सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है। तो लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं? They specify what the learners will know or will be able to do as a result of a learning activity. What the learners, यानी कौन, who will know, what the learners will know, who will know, and how will they know. They are usually expressed as knowledge, skill, and attitude. और knowledge, स्किल एंड एटीट्यूड को हम योग्यता या कॉम्पिटेंसी के नाम से जानते हैं। अब ये मुझे मिल गया था लर्निंग आउटकम्स बुकलेट में कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग आउटकम क्या है। एंड जब हम मोटा मोटी देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव वो होता है जो हम अपने लेसन प्लान में लिखते हैं। एक बाहरी आउटलाइन होती है जिसे हम अपने लेसन प्लान में लिखते हैं। आउटकम क्या होता है, ये वो योग्यता प्रमाणित शिक्षण पद्धति है जहां
हम अपने विद्यार्थियों को बताते हैं पहले ही कि आज हम ये सीखने का प्रयत्न करने वाले हैं, इन योग्यताओं को हम जानने वाले हैं। जैसे ही हम बच्चों को कक्षा के पहले इन बातों से परिचित करवा देते हैं, अवगत करवा देते हैं, बच्चों का फोकस पूरा अपनी कक्षा पर रहेगा, आप क्या पढ़ा रहे हो उस पर रहेगा, और जो क्लास में डिसरप्शंस चलते रहते हैं वो अपने आप ही कम हो जाएंगे, क्योंकि तब बच्चों को फोकस से पता होगा कि आज हम ये सीखने वाले हैं, आज हमारी योग्यताएं ये रहेंगी, आज हमें इतना ज्ञान मिलेगा। इन चीजों को आपको भी ध्यान में रखना है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? दे स्टेट द पर्पस बट आउटकम्स एक्सप्रेस हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स। दे इंटीग्रेट course content, activities that can be done, behavior, skill। वो हमने जॉन ड्यूई की एक्सपीरियंशियल लर्निंग में सीखा था, एनईपी में भी देखा था, गांधी जी ने बुनियादी तालीम नई तालीम में बताया है, यूज ऑफ द हैंड, द हेड एंड द हार्ट। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में भी यही हुआ है, हैंड, हेड एंड हार्ट। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, हैंड, हेड एंड हार्ट। तो यही सारी चीजें जो आजकल हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसीज, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, हैंड, हेड एंड हार्ट, इन्हीं चीजों पर हम आज भी काम कर रहे हैं और इन्हीं योग्यताओं को हम लर्निंग आउटकम्स के द्वारा, लर्निंग आउटकम्स के माध्यम से जांच रहे हैं। एब्सोल्युटली 3H पर ही हम काम कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हो सकते हैं, पर आउटकम्स को हम प्रायोरिटाइज करके कम बना देते हैं। ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद हम इंस्ट्रक्शनल पेडागोजिकल स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसके बाद हम आउटकम देखेंगे। बट आउटकम्स क्या है? बिल्कुल क्लियर, मेजरेबल। बच्चों, आज हम कक्षा में सीटी बजाना सीखेंगे, सीधी बात हो गई, सीटी बजाना सीखेंगे। जो हमने पहले ही आपको कॉमिक स्ट्रिप में दिखाया, आई टॉट स्ट्राइप हाउ टू विसल। तो हमने पहले ही बच्चों को बता दिया, आज हम सीटी बजाना सीखेंगे, यानी हर बच्चा कक्षा का सीटी बजाने पर फोकस्ड रहेगा। पर ये हो गया ऑब्जेक्टिव। हमें क्या करना है? आउटकम बताना है। तो हम बच्चों को क्या बोलेंगे? बच्चों, आज की कक्षा खत्म होने पर आप में से हर एक बच्चा सीटी बजाकर हमें दिखाएगा। अब क्या हो गया? बच्चों का फोकस चेंज हो गया। पहले बच्चा बोल रहा था टीचर सीटी बजाना सिखाएगी, अब टीचर सिखाएगी, मुझे सीख कर उसे दोबारा प्रस्तुत करना है। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम। आपने कक्षा की शुरुआत में ही ये बता दिया कि आज कक्षा खत्म होने पर आपको ये करना है, और ये हो गया आपका आउटकम। इसमें बच्चा अपनी नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड भी प्रस्तुत करेगा। तो ये वीडियो तो मैं आपको जो समय रहा तब बताऊंगी, पर ये एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से मैंने व्हील निकाला है। दिस व्हील आप देख सकते हैं, सेंटर ऑफ द व्हील, ये जो पर्पल कलर है उसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की 6 के 6 हिस्से हैं, ठीक है। अब इन 6 हिस्सों को मैं ब्लूम्स के वर्ब्स के साथ मैच करूंगी। तो जैसे मैंने कोई एप्लीकेशन क्वेश्चन बनाना है, तो मैं एप्लीकेशन का ये जो हिस्सा है उसको एप्लीकेशन के वर्ब्स के साथ लूंगी। कंस्ट्रक्ट, अब कंस्ट्रक्ट व्हाट? तो कंस्ट्रक्ट में कौन सी चीज आती है? कंस्ट्रक्ट डायग्राम, स्कल्पचर, प्रोजेक्ट, पजल, कार्टून, फिल्म स्ट्रिप। इनमें से कोई भी एक्टिविटी मैं
जो बच्चों से करवाना चाहती हूँ उसको मैं ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के वर्ब के साथ लूंगी, तब ये ब्लूम्स की लेवल हो जाएंगी। तो आप भी ये ब्लूम्स व्हील को डाउनलोड कर सकते हैं या यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ब्लूम्स व्हील हमें लर्निंग आउटकम्स लिखने में, उसे पढ़ाने में, पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस में और उसका इवैल्यूएशन असेसमेंट करने में बड़ा काम आता है। ये एक हैंडी चीज है, हमारे पास होनी ही चाहिए। आप कभी इससे प्रश्न भी बना सकते हो। So if I wanted a question, I would say compare and contrast the effects of World War I on the people and write your conclusion. यानी मैंने conclusion चुना activity से, मैंने analysis चुना compare and contrast से, और बच्चे को समझ में आया तभी वो analyze कर पाएगा, तभी वो conclusion draw कर पाएगा. So I have taken a different level of Bloom's taxonomy over there. अब ये जो हम learning outcomes की बात करते हैं वे smart goals होते हैं. They are specific, measurable, attainable, relevant, time bound. So smart goals specific, measurable, attainable, relevant, time bound होते हैं. तो यदि हमें ये गोल्स देखने हैं, ठीक है, तो हमें पहले तो 5 W's का प्रयोग करना है. Who, what, when, where, how and why. All 6 W's we have to use. Now look at this goal. This year, every student will score better in mathematics. Is this a smart goal? No, it is not a smart goal. Why is it not a smart goal? Is it specific? Is it measurable? Is it achievable? Is it relevant? Is it time bound? No. What should we have done? During a particular year, maybe 24, 25, all students of grade 10 will improve their score in CBSE examination year end by at least 10%. And how will they do it? By enhancing conceptual understanding and problem solving skills in mathematics. यानी हमें not only एक objective को outcome बनाना है, हमें योग्यताओं की भी जानकारी देनी, क्योंकि बच्चा कौन करेगा, कैसे करेगा और क्यों करेगा, इन 3 प्रश्नों का उत्तर हमारे पास हर बार होना चाहिए. चलिए दोबारा प्रयास करते हैं. ABC International School decides to improve writing skills in all stakeholders or in all students. चलिए इस वाक्य को स्मार्ट बनाइए. ये वाक्य स्मार्ट नहीं है, आपको इसे स्मार्ट बनाना है. तो आंसर होता ABC International School. Very good. Something Kutti, I saw that name in the chat. I couldn't get it. Mayuri Kutti or something. ABC International School decides to improve
writing skills of students of class 6 to 8 in English or Hindi before the commencement of the mid-term exam with specific focus on creative writing. Who, what, when, where, how, why? इन प्रश्नों का उत्तर आपके पास होना चाहिए. अब इस पर काम कीजिए. Little Heart School organizes training session on examination and assessment strategies for its middle wing teachers. इसे स्मार्ट बनाइए. ये स्मार्ट नहीं है, आपको उसे बनाना है. अच्छा, आपकी कोई अंतरंग चैट चल रही लग रही है. इस गोल को स्मार्ट नहीं बना रहे हैं आप लोग. वेरी गुड बाय सहोदय ट्रेनिंग. कॉन्ग्रेचुलेशन. अभी किसी ने वो लिखा था. तो Little Heart School launches 1 year long capacity building training program consisting of 3 learning modules for its teachers to upskill them on innovative teaching learning practices, followed by practical demonstrations after each module by all the teachers. This could be through the Sahodai as well. Why not? जिसने भी वो लिखा था सहोदय वाला पॉइंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. आपने बड़ा अच्छा काम किया था. तो आगे चलते हैं. स्मार्ट गोल में क्या होता है? लर्निंग, जो स्मार्ट लर्निंग आउटकम है उसमें क्या होता है? एक स्टेम सेंटेंस होता है, मतलब एक वाक्य होता है. बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और बाय द एंड ऑफ दिस लेसन or by the end of this lesson, unit, the students will be able to do what? An action verb. Maybe describe, maybe analyze, compare, contrast. What is the learning we are looking at? The relationship between the function and form of the human heart. In what context? In an oral presentation. The benefits of learning outcomes for teachers, they are effective for course design. They are effective assessment of the learning, better time management, improved communication because the students are also going to stay focused in class, improved teaching experience. ऐसा नहीं होता, कई बार हम क्लास से बाहर निकलते हैं और ऐसे परेशान हो जाते हैं, पूरे बाल ऐसे उड़ जाते हैं हमारे, और हम बोलते हैं ये कैसी क्लास है. एक एक बच्चे को लाठी लेके पीटने का मन करता है. ये तब होता है जब हमने लर्निंग आउटकम्स बच्चों के साथ शेयर नहीं करती. आप कभी कोशिश कीजिए, क्लास में एंटर होते ही लर्निंग आउटकम्स शेयर कर दीजिए. बच्चों का फोकस देखिए अपनी क्लास पर. तो हमें लर्निंग आउटकम्स थोड़े ऑब्जर्वेबल बनाने होते हैं. तो बाय द एंड ऑफ दिस लेसन, यानी एक हमने समय रेखा तय कर दी, एक सब्जेक्ट बना दिया. बाय द एंड ऑफ दिस लेसन कौन क्या करेगा? लर्नर्स, बच्चे. ऑब्जर्वेबल एक्शन क्या देखा? विल बी एबल टू कुक. व्हाट डिग्री ऑफ प्रिसिशन? एक आलू पराठा बनाना सीख जाएंगे बच्चे. कहाँ, कैसे? ऑन द स्टव. क्या रिसोर्सेस हम ला रहे हैं आलू पराठा बनाने के लिए? नॉन स्टिक तवा. और कितने समय में? 4 से 6 मिनट में. हम नहीं मैगी की ऐड देखते हैं 2 मिनट नूडल्स, वैसे ही हो गया ये आलू पराठा इन 4 to 6 मिनट्स. टीचर कोई शॉर्टकट जादुई पटारा करने वाला है. So when we talk of
examples of learning outcomes, we have to obviously cover all the domains. We start with knowledge sharing, and then we move to both sides, cognitive development as well as motor skill development, intellectual skill, individuals, personal growth. Importance of learning outcomes. So obviously the class will be engaged. That is the most important learning outcome because it's going to give you clarity and focus. It helps to assess learning, enhances student learning, facilitates curriculum development, helps to measure the progress of the class. Outcome-driven method focuses on achieving end result. It is well-planned and documented actions for ease of operation. Aim broken down into goals, ensuring corrective measures. यदि बच्चे इतना नहीं करते अच्छा जैसा हमने सोचा है तो हम कौन से करेक्टिव मेजर्स लेंगे? हम गेमिफिकेशन में जुड़ जाएंगे ताकि बच्चे गेम खेलते खेलते सीख जाए. Maximize relevant knowledge, values and skill sets required. Ensure futuristic skill sets जो हमने NEP में भी देखा है कि आगे क्या होगा. Emphasize innovation. Enable students to be lifelong learners. Enhance analyzing power, logical thinking of the learners. Encourage learners to contribute towards making a better society. So these are the main benefits of learning outcomes. So learning outcome में हम क्या देखते हैं, क्या क्या होना चाहिए? एक performance, एक condition, एक criteria. Performance statement describes what the learner will know and will be able to do in measurable specific terms. This statement should contain an action verb. Conditions describe under which circumstances the participant will perform. And finally, the criteria required for the quality of performance. इन सभी बातों को हम लर्निंग आउटकम्स में लिखकर बच्चों को बताएंगे. तो अब बताइए, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है कि आउटकम? बिल्कुल सही. जो लोग चैट में लिख रहे हैं बिल्कुल सही है आप लोग. So why do we need to shift from objective to outcome? Focus has shifted the process of learning. पहले हम टीचर सेंट्रिक थे. Stripe has learned to. I have taught Stripe how to whistle. Stripe चाहे सीखे ना सीखे कुछ और करे, हमारी कोई ये नहीं है. हमें कुछ मतलब नहीं है. हमने पढ़ा दिया, हमारा सिलेबस कंप्लीट है. अब क्या हो रहा है? अब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई है. स्ट्राइप को आपने पढ़ाया पर क्या उसने सीखा? आपको उसे सिखाकर बाहर आना है, सिलेबस कंप्लीट करके नहीं आना है. Development of affective, cognitive and psychomotor domain is equally important. 360 degrees holistic development. तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ये चार्ट है जो हम देख रहे हैं. Behaviors from simple to complex, lower order to higher order. Cognitive, affective and psychomotor domain, hand, head and heart में कैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी जा रही है. इसी के साथ हमें देखना है कि हम कौन सी योग्यताओं को देख रहे हैं. और 21वीं सदी की इन बेसिक योग्यताओं को हमें देखना ही देखना रहता है जब हम लर्निंग आउटकम्स लिखते हैं. क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, कल्चर एंड सिटीजनशिप, पर्सनल ग्रोथ एंड वेलबींग, इन सभी योग्यताओं को भी हमें ध्यान में रखना है. साथ ही में
एनसीईआरटी ने लर्निंग आउटकम्स की 2 पुस्तकें पब्लिश कर दी है और एक ड्राफ्ट लर्निंग आउटकम्स है। तो एक है लर्निंग आउटकम्स फॉर द एलिमेंट्री स्टेज, जिसका ये इंडेक्स पेज मैंने यहाँ दिखाया है आपको। हर एक सब्जेक्ट में ये फाउंडेशनल स्टेज से लेके अपर प्राइमरी स्टेज तक आपको यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स एंड पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज दिखेंगी। साथ में जो दूसरी पुस्तक है वो है लर्निंग आउटकम्स फॉर द सेकेंडरी स्टेज, जो कि 9th एंड 10th के बच्चों के लिए ये आई हुई है पुस्तक। तो इसमें से मैंने कुछ लर्निंग आउटकम्स एंड पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज रखे हैं आपके लिए। जैसे ये इंग्लिश से लिया हुआ है, आप लेफ्ट में देखेंगे तो पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज है, राइट में लर्निंग आउटकम्स है। ये साइंस के हैं, साइंस क्लास 10। अब देखिए इसमें कितनी स्पष्टतया दिखाया है कि ब्लूम्स का कौन सा वर्ब लिया है आउटकम लिखने के लिए, और हर एक वर्ब के लिए एक पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी लेफ्ट में दिखाई है। ये गौर करने की बात है, हमारे लेसन्स में भी हमें ये बदलाव लाना है। ये सोशल साइंस क्लास 10 है, इसमें भी आप देखिए राइट पर सारे वर्ब दिए, एक्शन वर्ब्स, एनालाइज, इवैल्यूएट, असेस, ये सारे हायर ऑर्डर वर्ब्स दिए, और इनके सामने पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज देखिए कितनी सिंपल है, बच्चा कर ही पाएगा। इंटरव्यू लेना है, न्यूज़पेपर पढ़ के उसमें से आर्टिकल लाना है, क्लिपिंग लाना है, सर्वे करना है, कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़नी है। मैथ्स क्लास 9, लुक एट द फोकस ऑन द एक्शन वर्ब्स। ये एक्शन वर्ब हमने ब्लूम्स व्हील से निकाले हैं, और सामने पेडागोजिकल स्ट्रेटजी देखिए कितनी सिंपल है। अब यहाँ पर एक बड़ी मजेदार बात यह भी है कि एनसीईआरटी ने लर्निंग आउटकम्स को मेन सब्जेक्ट्स पर न रुकाकर इवन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट, फाइन आर्ट, इन सब पर लिया है फोकस। तो ये मैंने परफॉर्मिंग आर्ट से एक लिया है, वहां भी आप देख सकते हैं कि परफॉर्मिंग आर्ट यानी नृत्य वाले टीचर्स, म्यूजिक टीचर्स, इनके लिए भी हमारे पास लर्निंग आउटकम्स एंड पेडागोजीज एनसीईआरटी ने दिए हैं। अब यदि म्यूजिक सिखा रहे हैं तो वो नाद है, आहत नाद है, अनाहत नाद है, कोलाहल है, ध्वनि है, कर्णप्रिय ध्वनि है, राग है, क्या है, और उसी चीज को आप कैसे सिखाओगे? आप तानपुरे की 4 तार तो दिखा रहे हो, पर उसके सामने यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा बजाऊं तो उसका स्वर कैसा निकलेगा? उन दोनों में क्या अंतर है? इन चीजों पर फोकस करके एनसीईआरटी ने लर्निंग आउटकम्स बुकलेट में सभी लर्निंग आउटकम्स और पेडागोजीज प्रस्तुत की है। साथ में एक डिस्क्लेमर दिया है कि ऐसी कोई जरूरी चीज नहीं कि हमने दिया आपने लिया। आपको अपने क्लासरूम में, अपनी कक्षा में कुछ अलग करना है, आपको छूट है वो करने की। तो इसी के साथ आज I will make a humble submission in front of all of you wonderful educators कि आप सबने इतना इंटरैक्ट किया, इतने गौर से सेशन सुना। आप अपना फीडबैक यहाँ चैट में दे सकते हैं। आपको कोई प्रश्न पूछने हो तो भी चैट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। Before I end the session, I want to thank Shri Rajiv Ranjan Sinha sir and Insha Rahman ma'am from Patliputra Sahodaya School Complex for inviting me here onto this wonderful session to interact with all of you beautiful, wonderful educators who've been constantly into the chat today. Thank you so very much. और साथ ही I would like to thank Shri Tarun Kumar, Joint Secretary Admin, CBSE Headquarters, former Head, Center of Excellence, Patna, जिन्होंने हमारी आपकी मुलाकात सबसे पहले करवाई और उसके बाद हमारा ऑनलाइन सेशंस, ऑफलाइन सेशंस का सिलसिला जारी रहा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर लिखिए, आप जो चैट में लिख रहे हैं वो मैं पढ़ रही हूँ। किसी ने पूछा है कि कॉमिक का आंसर तो बताइए। बिल्कुल, अब आप मुझे कॉमिक का उत्तर दें, वो आउटकम था कि ऑब्जेक्टिव?
जो कॉमिक मैंने सबसे पहले दिखाया था, आई टॉट स्ट्राइप हाउ टू विसल। वो ऑब्जेक्टिव था, आउटकम नहीं था। इट वॉज वेरी मच एन ऑब्जेक्टिव। थैंक यू एंड तालियां आप लोगों के लिए जो ऑब्जेक्टिव लिख ही रहे हैं चैट में। आप बड़े अच्छे से मेरा सेशन सुन रहे थे, उसकी मुझे बड़ी खुशी भी है, आनंद भी है। आप सभी को अक्षय तृतीया एंड मदर्स डे की खूब खूब बधाइयां। यदि मुझे स्ट्राइप वाला ही कॉमिक स्ट्रिप रिफ्रेश करके आउटकम बनाना होता तो मैं शायद ये बोलती, एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्ट्राइप विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू विसल। तब वो आउटकम होता। Because the teacher was teaching, it was one-sided, and Stripe was not learning, it was an objective. आपके फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बड़ा अच्छा सा फीडबैक दिया है। I just want you to take all that we have discussed in today's session into your classrooms. आपके अपने क्लासरूम्स भी इतने बेहतरीन हो, अगली बार जब मैं आपसे मिलूं इस प्लेटफॉर्म पर, आप मुझे आपके क्लासरूम में लर्निंग आउटकम्स बदलकर क्या फीडबैक हो रहा है, आपकी क्लासेस कैसे चल रही है, ये जरूर मुझे बताएं। मुझे बड़ी खुशी होगी देखकर कि आप लोग बिल्कुल फ्लॉलेस क्लासेस ले रहे हैं और आपको बड़ा मजा आ रहा है हमारे फील्ड में। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच टू ऑल दोज ऑफ यू विशिंग मी अ हैप्पी मदर्स डे। I do reciprocate the wishes. चैट बड़ी अच्छी चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है मुझे भी पढ़ने में। Thank you everyone, and thank you Dr. Rajiv Ranjan Sinha for joining us this evening. It was extremely delighting moment to even see you virtually today. Thank you very much, sir, for joining us. Looking forward to meeting all of you time and again, multiple times. Once again, wishing you a very happy Akshay Tritiya and a happy Mother's Day in advance. All right, see you, namaskar. Looking forward to meeting you in future sessions. Goodbye and God bless you all.